Hi all, welcome to Examshala. In this video, we are going to see some important news and articles of 8th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook, Telegram. Now let's move on to the main video. First news is about from JNK, जम्मू एंड कश्मीर, जो न्यूली डेवलप्ड यूनियन टेरिटरी है भारत सरकार के साथ। पहले जो हमारा अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, इट हैज़ बिन bifurcated into two union territory, that is Jammu Kashmir and Ladakh. Now there has been a provision, वहाँ पर एक convention था, provision था कि there were two capitals. In summer the capital shifted to Srinagar and in winters the capital was at Jammu. Now capital change होने का मतलब ये है कि secretariat change होता है. Secretariat means the officers, ठीक है, पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रालय, सचिवालय जिसको कहते हैं. सो ऑल द ऑफिसर्स सिटिंग विल शिफ्ट टू श्रीनगर. नाउ इन दैट शिफ्टिंग देयर यूज टू बी इनिशियली वो काम करेंगे एंड फॉर डूइंग वर्क दे नीड देयर फाइल्स. सो देयर यूज टू बी thousands of files used to transfer from Jammu to Srinagar during this April and May time. Now this caused a lot of huge of money loss, transportation loss, okay, time loss as well. Now though, since it has been converted into Union territory, the government of the day, that is the administration of the Jammu and Kashmir Union territory, has decided only and only sensitive files will be transferred. Others can be accessed through online media also. So now if we are writing some essays or some answers based on the science and technology and innovation of technology in governance, किस तरह से टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में फ़ायदेमंद हो सकती है, सो इसका एक एग्जांपल. एंड इस प्रोसेस को जब कैपिटल जम्मू से श्रीनगर मूव होता था, सो दिस प्रोसेस वाज नोन एज द दरबार मूव. ठीक है, दरबार बदलता था. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड कि व्हाट डू यू मीन बाय दरबार मूव. दरबार बदलना कौन से स्टेट की परंपरा है? सो जम्मू दरबार से श्रीनगर दरबार में, दरबार यूज टू बी अ कलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल एंड सेक्रेटरीट बेसिकली. सो फ्रॉम जम्मू दरबार द कलेक्ट्रेट और द सेक्रेटरीट गॉट शिफ्टेड टू श्रीनगर एंड दिस old 148-year-old tradition now has been changed with only some sensitive files जिसको आप लीक नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी अपलोडेड ऑन द इंटरनेट, दैट कैन नॉट बी शेयर्ड विद एनी अदर पीपल, विल ओनली बुक एंड दिस विल लीड टू मोर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. सारा का सारा ध्यान फाइल ट्रांसफ़र या लाने ले जाने में नहीं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस को बढ़ाने में लगेगा. सो इफ़ वी आर राइटिंग सम पॉइंट्स दैट आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ द JNK, what are the changes, what are the necessary administrative changes, what are the basic of DDC election, district development council elections, the grassroots level democracy, then moving of the governance, okay, change of these old traditions. So these all things can be included. Next important news is about the Supreme Court and its collegium. So recently it has been news based on one judge, that is Judge Kirpal. If he is to be appointed, he will become the first homosexual judge of India. So he will be first homosexual judge to be appointed in the Supreme Court. And now the problem what is coming is he has a partner. So Judge Kirpal has a partner, a male partner, who is working in the Italian embassy, as well as he has some interest, he has some properties in the European Union and Switzerland embassy. Now this might lead to conflict of interest. ठीक है, सो जज के एक पार्टनर की इटालियन एम्बेसी और स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी में कुछ पहले से प्रॉपर्टी है, ठीक है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस वगैरह में, एंड दैट ऑल्सो if he becomes a judge, now there will be some kind of a foreign influence in Indian judiciary. Also his partner belongs from UK, England. So in order to see these all problem, government has objected his appointment to the collegium. Now यहाँ पर समझने वाली दो चीज़ हैं. पहला,
सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का, ठीक है, जैसे कि हमने कल भी देखा था। प्रेसिडेंट के पास किसको अपॉइंट करना है उसकी पावर नहीं होती है, इट कम्स फ्रॉम द कोलिजियम। नाउ व्हाट इज कोलिजियम? दिस कोलिजियम इज कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि चीफ जस्टिस प्लस 4 to 5 सीनियर मोस्ट जजेस का एक बेंच होगा। वो डिसाइड करेंगे कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, नहीं बनाना है, एंड दिस कोलिजियम विल सेंड दिस रिपोर्ट टू द लॉ मिनिस्ट्री। अब लॉ मिनिस्ट्री अपने कंसर्न्स को भेज सकती है कि भाई हमारे पास ये कंसर्न है, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, इसके पीछे कोई इंटरेस्ट है, ठीक है, he is involved in some criminal interest or something else, whatever problem, the law ministry in the first time, the law ministry will send concerns to the collegium. But if the collegium does not accepts the law ministry's recommendation, then the law ministry will have to mandatorily, यानी कि जो collegium ने recommend किया दूसरी बार भी, तो उसको फिर सीधा प्रेसिडेंट को भेजना होता है और प्रेसिडेंट फिर उसको डायरेक्टली अपॉइंट कर देता है। तो यहाँ पर कोलिजियम की सुप्रीमेसी होती है। तो ये पहले अप्रूवल में गवर्नमेंट ने अपना ऑब्जेक्शन लगाया था, बात चल रही थी, एंड अगर वो क्लियर हो गया था, अगर कोलिजियम इसको फिर से नहीं मानता है, देन ही विल बिकम द फर्स्ट ओपन गे जज, ठीक है। सो ही इज द फर्स्ट गे जज, होमोसेक्सुअल जज इन द सुप्रीम कोर्ट। So what we understood the process? Process is collegium decides the name, gives to the law ministry. Law ministry, if have some objections, will send to the ministry, and in second time they will not listen to it. They will directly go to the president and he will be appointed. So this was all about the collegium system. Now there is a term called crime outsourcing. स्पेशली गुजरात के कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट आ रहा है क्राइम आउटसोर्सिंग। जैसे कि बिजनेस और सॉफ्टवेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता था, BPO, ठीक है। अलग अलग फॉरेन की जो सॉफ्टवेयर IT कंपनीज होती हैं वो अपना काम जो है इंडियन कंपनीज को शिफ्ट कर देती हैं और वो पार्ट बाय पार्ट उन काम को करके वापस से प्रोग्राम अपलोड कर देते हैं, या फिर उनका काम ऐसे बढ़ जाता है। ये बेसिकली होता था IT कंपनीज में कि काम किसी और का है और वो उसको आउटसोर्स कर देगा और बदले में उसको पैसे मिलेंगे। सेम थिंग इज़ crime outsourcing, and this has been achieved, this has been seen in Ahmedabad. Recently you might have heard about the Ahmedabad mill fire. There was a fire in the Ahmedabad mill. उसकी जब जांच की वहाँ की लोकल पुलिस ने, तो उसे पाया कि ये एक क्राइम आउटसोर्सिंग का केस है। ISI जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो क्या करती है कि लोकल लोगों को, किसी शहर के लोकल गुंडे, छोटे छोटे गुंडे, बदमाश, इनको कांटेक्ट करेगी पेपर वगैरह देख के या हिस्ट्री शीट देख के कि कोई छोटा मोटा गुंडा है, 6 महीने साल भर के लिए जेल गया है, बाहर आ गया है ना। छोटे मोटे गुंडे की चाहत होती है बड़ा बनना, ठीक है, एंड दे व्हाट नीड इज़ मनी, पावर, वेपन्स। तो इनको एक मैसेज आता है पेटीएम से या फेसबुक पर कि ये लीजिए, आपको हम इतने पैसे दे रहे हैं, पहले कम अमाउंट में 50,000 लाख रुपए के आसपास, यू गो बाई सम वेपन्स, बाई सम व्हीकल्स, ठीक है, बड़े आदमी बन जाओ, कहाँ से लेना है वो सब इन्फॉर्मेशन रहता है उसके पास, एंड फिर तुम्हारा जो राइवल है गुंडे में, है ना, गुंडे का भी अपना अपना बैच होता है, गैंग होता है, उसको ख़त्म करो और फिर उसके बाद हम जो काम बोलते हैं वो करो। दैट इज़ टू बर्न द मिल, कहीं दंगे फसाद फैलाओ, किसी को उठा लो, किसी बिजनेसमैन को पकड़ लो। तो इस तरह की चीज़ें ISI करवा रहा था, उसका खुलासा हुआ है अभी। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द इंटरनल सिक्योरिटी। जैसे कि देयर आर 2 केसेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। फर्स्ट वी हैव बीन सीइंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द नक्सल अटैक्स, ओके, द एम्बुश्ड अटैक एट द साउथ ऑफ टिकलगुड़ा, that is the Bijapur and Bastar region. Now this is also a kind of the internal security problem, but this problem is related to the technical problem. So जब हम कैशलेस मनी और कैशलेस इकोनॉमी की बात करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी, सो उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं और ये एक पॉइंट है, दैट दिस इज कॉल्ड द क्राइम आउटसोर्सिंग. सो इफ वी आर टू राइट अबाउट the good points and bad points about the digital economy, cashless economy, then we can write that this can also be used for
डिसरप्टिंग द इंटरनल सोसाइटी बाय द आउटसाइड फोर्सेस इन ऑर्डर टू ट्रांसफर मनीज एंड ऑल। बाकी कंट्रीज़ में क्या होता है, इसमें बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, बिटकॉइन अगर ऐसा पैसा है, बिटकॉइन अगर किसी को मिल जाएगा तो इट कैन नॉट बी ट्रेस्ड ऑल्सो, किसने किसको दिया, कहाँ से आया, एंड उससे सारे दुनिया के जितने भी इलीगल काम होंगे दैट विल बी डन। ओके, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, दिस ऑल विल बी डन बाय द बिटकॉइन मनी, एंड दैट इज़ वाई countries in Asian countries, the third world countries are not allowing this Bitcoin because it cannot be traced, or it can be flow from one place to another place. It will be used in all illegal activities. It might disturb the internal situation conditions in that particular country, and that is why many of the people are opposing it. So this was all about वो क्या करते हैं, incentivize करते हैं local crimes को, and they also use honey trap. Okay, so they provide good flesh इंसेंटिव्स। ठीक है, आपको अच्छे इंटरेस्ट मिलेंगे, यू विल गेट अ बेटर लाइफ पार्टनर, मनी, फ्लैश, पावर, व्हीकल्स, कनेक्शंस, फॉरेन ट्रिप्स ऑल्सो। किसी किसी केसेस में दिस पीपल आर फंडेड विद द फॉरेन ट्रिप्स। सो यू कम टू दिस प्लेस इन दुबई, वी विल गिव यू दैट मच अमाउंट ऑफ टिकट, यू गो विजिट स्विट्जरलैंड, ओके, गो विजिट अमेरिका एंड देन कम and then do this blast for me. So this is a very serious condition opening in the recent news, and so it can also be considered and written in the point of 2 points areas. One is in the internal security India and region, and second is the bad points, negative points of digital and cashless economy. The article is based on the electoral bonds. हमने पिछले भी आर्टिकल्स में इसका डिस्कशन किया हुआ है, तो आज इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को स्पेसिफिकली जो एस.वाई. कुरैशी, सो ही वाज वन ऑफ द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, तो ये अपनी बात को कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स क्या है और उनको ठीक कैसे करना है। रिसेंटली आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर स्टे लगाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इतने साल से ये प्रोसेस चल रहा है तो ठीक ही होगा, इस पर स्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको स्टे लगा देंगे तो जितने भी कैश, पहले क्या हो रहा था कि देयर वाज अ कैश, अनअकाउंटेड कैश पॉलिटिक्स में यूज हो रहा था। अभी एटलीस्ट वो क्या है, ऑफिशियल कैश है, ट्रांजैक्शन उसके रिकॉर्ड है, बैंक में रिकॉर्ड है, तो ये इलीगल करेंसी तो कम से कम नहीं है। ठीक है, इलीगल करेंसी तो नहीं है, सो जो भी कैश है, जो मनी है, उसका एक ट्रेल है, वो पता चल सकता है। तो ये एक अकाउंटेड, यानी कि पैरेलल इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ पैरेलल इकोनॉमी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मल इकोनॉमी, it has a tracked and trace, and so it cannot be quashed. But उसके कुछ और concerns हैं. What are the concerns that we will see? So we will revise what is electoral bonds, though it has already been explained in the previous videos. You please refer to go to these videos and see what are electoral bonds. But let's get a revision. So there are bearer instruments. Bearer instruments means the person who is holding the bond is the owner of the bond. That's it. इट्स नथिंग, नो नेम इज रिटन, उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, किसका है, किसने इशू किया है, जस्ट इट इज़ इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एनकैश भी कहाँ होगा, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, तो उसका सोल अथॉरिटी है। 15 दिन के अंदर एनकैश करना है, नहीं होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर्स के रिलीफ फंड में चला जाने वाला पैसा। और उस 15 दिन के अंदर भी जिस पार्टी के नाम से इसको दिया गया है, वो उसके ऑफिशियल, जिस पार्टी को ये दिया गया है, अपने ऑफिशियल बैंक अकाउंट से ही उसको एनकैश करवा सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज़ अ बियरर इंस्ट्रूमेंट्स। इस पर डोनर का नाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता? उसका जो रीज़न दिया गया है कि सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए। अगर किसी गवर्नमेंट को पता चल गया कि इस आदमी ने मुझे चंदा नहीं दिया था, दूसरे पार्टी को चंदा दिया था, और वो सरकार में चुन के आ जाती है, तो हो सकता है कि उस पार्टी, उस व्यक्ति, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी, उस कॉरपोरेशन के साथ गवर्नमेंट भेदभाव करे। इसको देखते हुए उसको सीक्रेसी रखी गई थी। बट इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी, दैट इज़ कौन फंड कर रहा हो पता ही नहीं चल रहा है। विच पर्सन इज़ एक्चुअली फंडिंग अ पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट नोन। ठीक है, कोई आम आदमी की सीक्रेसी तो है, लेकिन अगर सपोज करो कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है, तो कोई फॉरेन कंट्री सपोर्ट कर रही है, तो ठीक है, कोई नीचे क्रिमिनल सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें जो पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी है, दैट इज़ बीन कॉम्प्रोमाइज्ड बाय सच काइंड्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स. Now it also leads to black money. How? Black money is the money which has no recent account. So कैश में तो नहीं, लेकिन डिजिटल ब्लैक मनी भी हो सकती है. That is, नंबर ऑफ द शेल कंपनीज विल फॉर्म. छोटी छोटी कंपनीज बन जाएंगी जिनका काम ही होगा कि
बाहर से कैश उठाना, इलीगल कैश को उठाकर उसको एक कंपनी बनाओ, नकली कंपनी, और उस नकली कंपनी से दैट फेक कंपनी विल फंड अ पॉलिटिकल पार्टी। सो इससे हो क्या रहा है, ब्लैक इज गेटिंग वाइट। तो ऐसा हो सकता है ना, पार्टीज़ के पास अपना बहुत सारा कैश हो, अलग से उन्होंने कहीं से उठाया हो, अलग तरीके से इलीगल कैश हो, उस इलीगल कैश को क्या करेंगे वो छोटी छोटी अलग से बिना काम की कंपनी, जिसको शेल कंपनीज कहते हैं, ठीक है, इस तरह कंपनी होती है जो कुछ करती नहीं, बस उनका एड्रेस होता है और ऑफिस। देयर इज नो प्रोडक्शन, नो सेलिंग, नो परचेज, नो बायर, नो एम्प्लॉयज़, इट इज़ जस्ट एन एड्रेस एंड हैव अ बैंक अकाउंट। व्हाट विल, तो गलत ट्रांजैक्शन दिखा के छोटी छोटी शेल कंपनीज बनाकर ये सारा ब्लैक मनी उसको ट्रांसफ़र करके, एंड दैट इस ब्लैक मनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाइट थ्रू दिस इलेक्टोरल बॉन्ड्स। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर टेररिस्ट, ठीक है, फॉर टेरर एक्टिविटीज़ फंडिंग, टेरर फंडिंग। बहुत सी पार्टियाँ इसको टेरर फंडिंग, विदेशों से पैसा मंगा कर टेरर फंडिंग करवा सकती हैं। लोकल प्रोटेस्ट फंडिंग हो सकता है, ठीक है, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसके क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसने खरीदा और किसने किसको दिया, सो जब पैसा अनअकाउंटेड होता है, व्हेन द मनी इज अनअकाउंटेड, इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन इट। Anonymity, that means unaccounted. Foreign influence. Now there was a rule in the Companies Act which this government amended. So amendment हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब 2017 में बजट के साथ पास हुआ। तो आपको पता है कि बजट में एक पार्ट होता है फाइनेंस बिल भी, ठीक है, बजट का पार्ट होता है फाइनेंस बिल। बजट में टोटल 5 प्रोसेस में होते हैं, उसमें फाइनेंस बिल होता है। तो उस फाइनेंस बिल में कौन सा टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे प्रोविजंस है, उनको लीगलिटी दी जाती है। उस 2017 के फाइनेंस एक्ट में देयर वाज एन अमेंडमेंट टू दिस कंपनीज एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एक्ट, दैट इज FCRA एक्ट, एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट। इन तीनों कानून में बदलाव किया गया। और क्या बदलाव किया गया कि पहले द कंपनीज, यानी किसी एक कंपनी, सपोज करो ए इज़ अ कंपनी, और उसको 3 साल में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट के अमाउंट का एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज का केवल 7.5% ही वो चंदा दे सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से परमिशन लेने के बाद ना। ये जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स आता है तो उसमें अमेंडमेंट हो जाता है और कहता है कि ये जो 7.5% का लिमिट है, ये अब कोई लिमिट रहेगा नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं, यानी कि उनको भी दिखाने, यानी कंपनी के पार्टनर्स को भी नहीं पता चलेगा कि कंपनी के पैसा कहाँ जा रहा है। दैट इज़ नाउ दे कैन गिव अप टू 100% एज अ फंड, चंदा, एंड दैट टू नॉट अ प्रॉफिट। अगर वो लॉस में है तो भी दे सकती है, यानी कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है, जितना चाहो उतना दे दो ना। सोचिए इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। द नेगेटिव इम्पैक्ट इज अ कंपनी इज मेकिंग लॉस एंड ही इज टेकिंग लोन, ठीक है, जस्ट लाइक द केस ऑफ नीरव मोदी, विजय माल्या। वो क्या करेंगे, दे विल टेक लोन्स एंड दे विल गिव टू द पॉलिटिकल पार्टीज, और फिर भाग जाएंगे। तो पैसा किसका गया, कॉमन मैन। बैंकों का पैसा, बैंकों में पैसा डालता कौन है, कॉमन मैन। फिर जब बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो उसमें फिर पैसा वापस कौन रिचार्ज करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे कहाँ से आते हैं, सरकारी लोगों के पैसे होते हैं, आम जनता के पैसे होते हैं। गवर्नमेंट इसको फिर से कैपिटलाइज करेगी, लोगों को पैसा नहीं मिलेगा तो सरकार देने वाली है, तो आम टैक्स पेयर का पैसा कट रहा है और वो लोग अपने मौज में हैं। और ये चीज़ का विरोध किसी पार्टी ने नहीं किया। इवन द अपोजिशन लाइक CPI, जो लोग अपने आप को जनता की पार्टी कहते हैं, गरीबों की पार्टी कहते हैं, शोषित दलित, समाज में इक्वालिटी, द सोकल सोशल पार्टीज, उसने भी इसका अपोज नहीं किया, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी लाइक समाजवादी पार्टी, RJD पार्टी, इवन कांग्रेस, सो दे डिड नॉट अपोज इट। नाउ दे आल्सो अमेंडेड अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में पहले क्या था कि कोई भी फॉरेन की कंपनी या फॉरेन की गवर्नमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी, MLA, कोई कैंडिडेट को पॉलिटिकली फंड नहीं कर सकती। दिस वाज अ रूल। नाउ ये रूल हैज़ बीन चेंज, बड़े प्यार से चेंज कर दिया गया और किसी को पता नहीं चला और किसी ने इसकी अपोजिशन भी नहीं की। और जब बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा तो पता चला, इसको हाई कोर्ट बोल, दिल्ली हाई कोर्ट हैज सीन दैट बोथ कांग्रेस एज वेल एज BJP हैज़ फॉरेन कंट्रीब्यूशंस। दोनों ही पार्टी के पास विदेशियों से पैसे आ रहे थे, विदेशी कंपनियां इनको फंड कर रही थी, और इसीलिए दोनों ने ही इसका अपोज नहीं किया और ये आराम से शांति से पास हो गया। और आपको जब पता है कि किस तरह से फॉरेन कंट्रीज़ लोकल इलेक्शंस पे इन्फ्लुएंस कर सकती है, जब यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंपनी में रशिया इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो फिर हमारी तो क्या ही बात। सो इसमें चेंज कर दिया गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एक्ट रेगुलेशन में चेंज कर दिया गया। रिप्रेजेंटेशन पीपल, जो चुनावों को लेकर
चुनावों के नियम बनाते हैं उसमें एक्ट में चेंज कर दिया गया और उसमें भी फॉरेन एंटिटी को बड़े प्यार से इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस बॉन्ड के इश्यूज़ हैं, जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर श्री HY कुरैशी बता रहे हैं। एंड उसका कुछ सॉल्यूशन भी दिया उन्होंने। द सॉल्यूशन इज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, यानी कि सरकारी खर्चे पर इलेक्शन हो। पॉलिटिकल पार्टी भी जो खर्चा करे बाकायदा उनको कूपन मिलेगा, उस कूपन का उसको बिल देना होगा और उस हिसाब से वो लोग खर्चा करें। और इसमें जो है बहुत कम अमाउंट में, यानी उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 10,000 करोड़ के आसपास ही खर्चा होगा। ऐसे खर्चा हो रहे हैं 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, इवन हमारे इलेक्शन का खर्चा यूनाइटेड स्टेट्स के इलेक्शन से खर्चे से ज़्यादा हो रहा है। अगर आप हर एक प्रॉपर कैंडिडेट, प्रॉपर पार्टी, प्रॉपर सीट का जो है अकाउंटिंग करेंगे तो इट इज़ इवन मोर देन द इलेक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट। तो इकोनॉमी में हम उनसे भले ही पीछे हैं, लेकिन इलेक्शन के खर्चे में वी आर मोर देन देम। सो इनका कहना है कि स्टेट गवर्नमेंट यानी भारत सरकार इलेक्शन को फंड करे और किस हिसाब से पैसे दे, तो पिछले इलेक्शन में जिसको जितना % वोट मिला है उस टोटल फंड का उतना % पैसा उसको मिले। ये एक पॉइंट बताते हैं। अगर ये भी नहीं है तो एक नेशनल इलेक्शन फंड बनाइए, लोगों को कहिए कि आप इसमें डायरेक्ट फंडिंग करिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना देकर लोग इसमें चंदा जमा करें और इसमें कुछ इनकम टैक्स रिबेट दीजिए। जैसे कोई टैक्स स्लैब में 5 लाख से ज़्यादा अमाउंट अगर आप कमाते हैं तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन अगर वो पैसा आप इसमें दे देंगे तो आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। इस तरह की लुभावी स्कीम देकर हम इसमें लोगों से डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं और फिर नेशनल इलेक्शन फंड जो इलेक्शन कमीशन के अंदर काम करेगा और फिर वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को या रैलीज़ को फंड करेगा। इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने वाला है और अकाउंटेड मनी भी आने वाली है। और जो बाहर के लोगों का जो इन्फ्लुएंस है, बाहर की प्राइवेट कंपनियाँ, फॉरेन कंपनी जो इन्वेस्ट करती है, उनका बेसिक इंटरेस्ट क्या होता है? इफ़ समवन इज इन्वेस्टिंग, गिविंग फंडिंग टू द गवर्नमेंट, व्हाट दे वांट लाइसेंसेस, इलीगल लाइसेंस, है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, लाइसेंस मिल जाए। तो ये जो कॉरपोरेट बिजनेस एंड पॉलिटिकल नेक्सस होता है कि वो उसको पैसा देगा, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट देगा और किसी को मिलने वाला, दैट इज़ क्रोनी कैपिटलिज्म, कि कुछ 4-5 गिने चुने लोगों के हाथ में ही सारी सत्ता रहेगी, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, बिजनेस हो, एंड दैट इज़ गोइंग टू हार्म द इलेक्शंस। और इनको सॉल्व करने के लिए ये चीज़ें बताई गई हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।